Okay, so let's discuss all the question from DPP first, from the wastewater engineering part. So here in this question, I think there is a typing mistake here. Sewer should not be designed to run full. Question is, sewer is not designed, or sewer is uh, not designed to run full. To run full. Okay. Now, out of this four option, which will be correct? Prevent escape of sewage, to prevent covering of sewer, to facilitate ventilation of sewer. So you all know that that extra or partial flow we always take. Why? Because to facilitate ventilation of sewer. So right answer for this question will be option. The self-cleansing velocity for all sewer in India is. Now this condition you need to, like this exact value you need to know. For that, what you can do, the right option will be 1 to 1.5 meter, 1 to 1.2. This value I think I forgot to give in my class. So this value you can note it down. Self-cleansing velocity for all sewer in India, this range will be 1 to 1.5 meter per second. Question number 3. Type of pump most generally used in sewage pumping area. So generally in a sewage pumping area, if you find the most type of the pump we are using is axial flow pump, axial flow through pump. We are using it in sewer pumping area. This is something I have given in my first chapter when I was discussing about type of pump. That time I told you about this. Question number 4. In a sewerage system, flushing tank is located at. In a sewerage system, flushing tank is located at. First of all, understand flushing tank. What is the purpose of flushing tank? Generally, what happens now in a sewer line sometimes, so even though we are providing so much, so accurately about the self-cleansing velocity and all, but still you will find some amount of silt get settled in our sewer. So for that, we need, there's always a tendency that in a month or in a week, there is always a maximum flow which happened. And some places, if maximum flow will not occur, in that case, what we do, we provide this flushing tank. So in the flushing tank, we provide in flushing tank we store some amount of water. So whenever it is needed, we provide that extra amount of water so that the सीवर कैन क्लीन और सीवर बहुत जल्दी ऐसे से आपको क्लीन होता रहे कि हम चाहते हैं. तो सीवर line with a steep gradient generally we provide here. C option will be the right option for all of you. Question number 5. The accumulation of sludge per person per year usually taken as. So this is something you have not studied till now. When you will study सेप्टिक टैंक, वहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रेट ऑफ स्लज एक्युमुलेशन कितना होता है. तो दैट इज 30 लीटर पर केजी, 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर. सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम, ड्रेनेज फ्रॉम रोड, वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन, एनी वेस्ट वाटर ऑफ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल ओरिजिन. तो डी विल बी द राइट ऑप्शन. फॉर सीवेज जो पूछ रहा है वो आपसे सलेज वगैरह नहीं पूछ रहा, वो आपसे सिर्फ सीवेज पूछ रहा है. 7. According to IS 3306, the tolerance limit of industrial effluent discharge into public sewer should have effluent temperature not exceeding. अब ये बात भी आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी आप परेशान मत होइएगा. ठीक है, अभी आपने पढ़ा नहीं है क्योंकि अभी आप लोग डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट पे नहीं आए हो ना, तो ये पहले क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. The sewer pipe have to design and checked for. डिजाइन हम लोग मैक्सिमम फ्लो के लिए करते हैं, चेक करते हैं मिनिमम फ्लो के लिए. ई ऑप्शन आपका क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सीवरेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइन फॉर. जनरली जो आप सीवरेज सिस्टम डिजाइन करते हो, ये फिर से क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में होना चाहिए. वैसे 30 साल के आसपास करना चाहिए. 25 साल विल बी द 25 ईयर विल बी द राइट आंसर. The hydraulic mean depth of a circular sewer running full. What they're asking is hydraulic mean depth. Actually, they need to write here is hydraulic radius. There's nothing we call hydraulic mean depth. So whenever somebody is telling you hydraulic mean depth, now actually they are searching for this hydraulic radius.
So R value for sewer running full will be d by 4. So option B will be the right option. Option B will be the right option. The standard BOD at 20 degrees Celsius is taken for the consumption. Now something which you have not studied till now, like next class we'll study this BOD part. तो अभी आपने BOD पढ़ा नहीं है, so don't worry about this. तो जनरली जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं वो 5 दिनों के लिए लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीवेज फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन इज फाउंड. नाइट्रोजन इज फाउंड. नाइट्रोजन इज फाउंड इन टाइल फॉर्म ऑफ. जनरली जब आप फुल्ली ऑक्सीडाइज स्टेट देखते हैं, तो मैंने आपको जब बताया था क्वालिटी ऑफ वाटर चैप्टर, वहां मैंने बोला था फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन में सबसे लास्ट आपका क्या था, नाइट्रेट्स, जो फुल्ली ऑक्सीडाइज स्टेट होता है. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 13. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली आर. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली आर. हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो भी आप कल ही पढ़ोगे. ये आई थिंक क्वेश्चन मिक्स हो गया है 2-3 चैप्टर का. तो देखिए, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन के लिए. जो आपका फ्रेश सीवेज रहता है ना, आपके सीवेज वाटर में क्या रहेगा, वॉश बेसिन से पानी है. हैंड वॉश क्या करोगे, एल्कलाइन होगा. कपड़े धोगे वो एल्कलाइन है. बाथरूम में मतलब फेस वॉश यूज़ करोगे मोस्टली एल्कलाइन होंगे. सोप यूज़ करोगे एल्कलाइन होंगे. आपके जो वॉश बेसिन मतलब सॉरी किचन सिंक में जो होगा विम बार वगैरह जो आप यूज़ करते हो वो लिक्विड वो एल्कलाइन है. सो ऑल दीज गिव्स यू एल्कलाइन नेचर. तो इन दैट केस आपका जो फ्रेश होगा वो एल्कलाइन रहेगा और जो आपका सेप्टिक रहेगा वो एसिडिक. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन 14. The relation between theoretical oxygen demand, biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand is given by. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 है आपका TOD, BOD और COD. फिर से ये आप लोग को अभी नहीं पता होगा, बट कोई बात नहीं है, जब आप लोग पढ़िएगा तो पता चल जाएगा. नेक्स्ट चैप्टर यही है, नेक्स्ट चैप्टर इसी के अबाउट में है. ठीक है. तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा भी अगर देखेंगे तो BOD, उससे बड़ा COD और उससे बड़ा TOD. तो अब जहां भी मिल रहा है देख लीजिए. सबसे बड़ा TOD, उसके बाद BOD, उसके बाद नहीं, उस पहले ये बी ऑप्शन में सही जा रहा है. बी ऑप्शन में आपका सही बैठ रहा है. क्वेश्चन नंबर 15. द रेट ऑफ 5-day BOD टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट. अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको दिखेगी, लगभग अगर मैं बोल रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बोल पाऊंगा, लगभग जो है आपको वो 68-70% रहता है. तो उसके हिसाब से देखिए 2/3 आपका सही बैठेगा. 2% solution of sewage sample is incubated for 5 days at 20 degrees Celsius. The depletion oxygen was found to be 5 ppm. BOD आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी अभी आपने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लोगे, फिर इन सारे सवाल का जवाब दे पाओगे आप. DO इनिशियल देखो, डिप्लीशन ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है, डिप्लीशन आपका 5 ppm है और डायल्यूशन फैक्टर के लिए उन्होंने 2% डायल्यूशन दे रखा है. तो 100 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, ये हो गया आपको 250. ऑप्शन बी, 16 का आपका ऑप्शन बी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17. रेट ऑफ BOD इज नॉट गवर्न बाय. रेट ऑफ BD इज नॉट गवर्न बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, टेम्परेचर ऑफ सीवेज, बैक्टीरियल पॉपुलेशन, प्रेशर ऑफ सीवेज. आपको सिंपली दिख रहा होगा कि प्रेशर ऑफ सीवेज से कोई रिलेशन नहीं है हमारे BOD वाले पार्ट का. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. द माइक्रोबियल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स इज. द माइक्रोबियल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक इज बेसिकली ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा जब आप रिएक्शन देखोगे. ठीक है. रिएक्शन जब आप देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल LT इक्वल टू आपका आ रहा था L0 e⁻⁻k × T. ये क्या था आपका, पर डे में यूनिट था ना. तो ये आपको इंडिकेट कर देगा, यूनिट ही बता देगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन स्ट्रीम इज मैक्सिमम एट नून, मिनिमम एट नून, मैक्सिमम एट मिडनाइट, सेम थ्रू आउट द डे. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है आपको मैक्सिमम एट नून, मिनिमम एट नून, मैक्सिमम एट मिडनाइट, सेम थ्रू आउट द डे, ये आपसे पूछा जा रहा है. क्वेश्चन नंबर जो राइट आंसर क्या होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो स्ट्रीम में देखी जाती है ना, जनरली जो आपकी पानी वानी में देखी जाती है, वो देखी जाती है कि जो नून टाइम में आपको रहेगा, एग्जैक्टली नून टाइम में आपको वो मिनिमम दिखेगा. ठीक है.
और मैक्सिमम आपको दिख सकता है वो अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग आपको सबसे, जब एकदम सूरज की किरण आई भी नहीं है ना, तो आपको, क्योंकि रीजन क्या है आपको मैंने बताया था, टेम्परेचर और सॉलिडिटी ऑफ गैसेस का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई सूरज की किरण पानी पे पड़ती है, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसकी सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस घटती है। तो इन दैट केस minimum at noon will be the better option here. Minimum at noon will be the better option here. Okay, so I hope it is clear to all of you.